So our today's topic is ionic bond from chapter number 4, that is the structure of molecule. Now move towards the definition. As depicted from its name, ionic bond made up of ions. We can define the ionic bond as the type of the chemical bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another. Complete transfer of electron. What does this term means? Complete transfer means among the two atoms that are forming the ionic bond, one atom will lose the electron and other atom will gain the electron. One atom will lose and other atom will gain the electron. So hence there is a complete transfer of electron from one atom to another. Now just revise the properties of group 1 elements. Group 1 of the periodic table. We know the group 1 elements are called alkali metals. They are the metals and they form alkalis when dissolved in the water. Hence the name is alkali metals. All the group 1 electron as depicted from its group number contains one electron in the outermost shell. All group 1 elements have one electron in the outermost shell. As they have one electron in their outermost shell and it is difficult to gain 7 electron to be stable as per the octet rule, so they tend to lose the one electron and the previous shell is complete, so they become stable. Group 1 element have the tendency to lose the electron and by losing the electron they form positive ion. Hence they are इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. ठीक है. Now let's move towards the group 17. Group 17 are called halogens. 17 or group number 7. If we skip the transition element, then it comes to be the 7 at 7th number, and group 7 means they have the 7 electrons in their outermost shell, and to achieve the stability they need only one electron in their outermost shell, and by adding one electron the outermost shell will have 7 plus 1 8 electrons, so they become stable according to octet. Octa means 8, so they become stable according to octet rule. So the group 17 elements or the halogens, they have the tendency to gain one electron, and by gaining the electron they can easily form the negative ion. Hence they are also called electron acceptors. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है. अब ये दो ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, उनको भी हम मेटल्स कहते हैं, दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और इसी तरह हमने ग्रुप 17 का डिस्कस किया कि उनके अंदर टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है. ग्रुप 1 वाले इजीली दे देंगे, ग्रुप 17 वाले वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों का काम हो जाएगा, बोथ ऑफ द ग्रुप्स बिकम स्टेबल. अच्छा, अब हम थोड़ा सा आइंस की तरफ आते हैं रिवाइज करने के लिए कि हमें समझ इजीली आ जाए. ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव आयंस होते हैं और पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, कैट आयंस. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस लाइक H+ हो गया, सोडियम मेटल है, ग्रुप 1 में होता है. सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन Ca+2, they are formed by loss of an electron, and size of the cation is smaller than atom because a cation loses the shell. देखो इलेक्ट्रॉन क्यों, अब ये थर्ड सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड में होता है ना, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, पीछे सेकंड शेल कंप्लीट होता है. ठीक है, तो शेल तो एक ख़त्म हो गया ना, जब केटाइन बना तो केटाइन का साइज़ भी तो छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अ शेल. Negative ions, they are called anions. They are negatively charged ions like chloride ion, hydroxide ion, iodide ion, bromide ion, fluoride ion. These negatively charged ions are formed by gain of an electron,
and size of an anion is bigger than the corresponding atom. Why? Because entering electron and the electrons already present in an atom of the outermost shell, they repel each other and shell get enlarged. दोनों में रिपल्शन होगी ना, नए आने वाले में भी और पहले भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें भी, ठीक है। तो उस रिपल्शन की वजह से धक्का लगता है और शेल का साइज़ बड़ा, मतलब जो शेल एनलार्ज हो जाता है। तो एटम जो है हमारे पास, जो एनाइन बना, उसका साइज़ एनलार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द एटम, ठीक है। हमने रिवाइज क्या करना था? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन द एटम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन द एटम विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। नाउ we will discuss the ionic bond with an example of formation of sodium chloride, that is our common salt, and sodium chloride is the ionic compound. So let's discuss how the ionic bond is formed between sodium and chlorine atom. This is a brief overview. Sodium atom, outermost shell have only a single electron, and in the chlorine atom the outermost shell contains 2, 3, 4, 5, 6, 7 electron. One space is empty. There is a space of single electron, so that if the chlorine gets that single electron, it will become stable according to the octet rule. So the sodium valence electron will completely transfer from the sodium to the chlorine atom, and by losing that valence electron, sodium will acquire the positive charge and chlorine will acquire the negative charge. सोडियम आयन कैटाइन बन जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन एटम कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन और एनाइन में, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चार्ट आप देखो, सोडियम एटम 11 मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स और द 11 प्रोटॉन्स। अगर आप ये मैंने आपको एक इजी वे आउट बताया भी था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करने का, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? 3 हुआ ना, आउटर मोस्ट शेल 3 हुआ, और इसके 3 में आप देखो, इसके 3 में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनकी टेंडेंसी, जिनमें 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो सेकंड में देखें 2 हो गए S में, और P में कितने हो गए? 6, 2 और 6 8 हो जाएंगे, फिर तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है सोडियम? वो सोडियम आयन बन जाता है। कैसे? आप सोडियम एटम देखो, सोडियम एटम में क्या है? 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज इस पर 0 आ गया ना, +11 -11 0। तब सोडियम आयन बना तो क्या हुआ? ये जो आप नीचे आप सोडियम का शेल देखो, इसमें 2, फिर अगले में 8 हैं, फिर उससे नेक्स्ट में 1 है थर्ड में। तो ये जो 1 है ना थर्ड में, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो पीछे फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड में 8, तो आउटरमोस्ट शेल तो अब 2 हो गया ना, वो फुल है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें 11 प्रोटॉन है, और चूँकि अब हमने सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? माइनस फॉर द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। टोटल चार्ज अब इस पर क्या आएगा? +1, माइनस करो ना, +11 -10, आंसर क्या आएगा? +1। तो सोडियम एटम पे यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा, यानी ये सोडियम पॉजिटिव आयन या सोडियम कैटायन बन गया है, ठीक है। और कैसे बना है? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों किया है? क्योंकि वो उसी की वजह से तो अनस्टेबल था, स्टेबिलिटी के लिए उसने लूज़ कर दिया, पीछे उसका जो सेकेंड शेल वो कंप्लीट था। अब जो सोडियम आयन है यहाँ पे, इसका कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो अगर हम इसी बात को ज़रा इक्वेशन से देखें तो सोडियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन, ठीक है ना। बाकी देखो ना, फर्स्ट और सेकंड शेल एज सच इसके कंप्लीट हैं, जो थर्ड में आउटर मोस्ट था वो उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, वो हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। क्लोरीन में ऊपर 17 लिखा हुआ है ना, इट मीन्स इट हैज़ द 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स।
अच्छा, अब 17 के अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है 1s2, सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं, 2s2, 2p6, टोटल कितने हो गए 10, नहीं 6 7 8 9 10, 3s2 एंड 3p5, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पिक्चर में एक ये मिस्टेक है, 3s2 के बाद आप क्या लिखोगे 3p5, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो 12 बन रहे हैं ना, तो 12 में से 17, 17 में से 12 माइनस करो, बाकी 5 रह गए, वो कहाँ जाएंगे 3p में, 3p5, ठीक है, तो 3p5 इसका मतलब है p में तो 6 आने चाहिए थे ना, तो हम यहाँ पे हमारे पास देखो अब इधर पिक्चर में शो हो रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसको एक और मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन एटम चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना है +17, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -17, टोटल चार्ज 0। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा, और इस पर -1 चार्ज क्यों आया है, पहले तो आप देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन जिसने ऐड हुआ आउटर मोस्ट सेल में, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इन द फर्स्ट सेल, 8 इन द सेकेंड, 8 इन द थर्ड, ठीक है, तो यह तो स्टेबल हो गया ना, आउटर मोस्ट सेल इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन तो 17 के 17 ही रहे, इस पिक्चर में भी थोड़ा सा इशू है, 17 टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कितना आएगा 17 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -18, दोनों में से आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो हमारे पास क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन कैसे बना है कि आप ये वाली पिक्चर आप देखो, क्लोरीन एटम 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 0, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं जिसमें -1 चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। क्लोराइड आयन में अब क्या होगा 17 प्रोटॉन होंगे लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो चार्ज क्या होगा +17 -18, ठीक है, -1 चार्ज आएगा, ये एनाइन बन गया, ठीक है। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, वी हैव सोडियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, और वी हैव क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम ने क्या किया, वो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने क्या किया, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और अब इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो सोडियम विल बिकम द पॉजिटिव चार्ज आयन, क्लोरीन विल बिकम द नेगेटिवली चार्ज आयन। अब ये दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस हैं, एंड वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उनके अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिससे हमारे पास बन जाएगा आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आप देखो कंप्लीट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन completely ट्रांसफ़र हो रहा है टू द क्लोरीन एटम, एंड द क्लोरीन नाउ हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Sodium will acquire the positive charge and chlorine will acquire the negative charge, and overall there is a strong force of attraction between the positively and negatively charged ion, and hence we have the ionic compound ionic bond formed between these two oppositely charged ions, and this ionic bond is called, ionic compound is called sodium chloride. Clear? What are the ionic compounds? Ionic compounds are those that in which there is the ionic bond. Compound that are formed due to the ionic bond are called the ionic compounds. अब ionic compound like sodium, इसमें कोई molecules नहीं होते ना, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें आयंस होते हैं, और इतने आयंस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो इतना टाइटली पैक होते हैं, ठीक है, और बहुत टाइटली पैक है। और देखें एक रेगुलर पैटर्न है इनमें, हर कैटाइन को 6 एनाइंस राउंड कर रहे हैं, हर कैटाइन को 6 एनाइंस राउंड कर रहे हैं। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड।
फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास है, दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब होता है? क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जिनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल सेटिंग होती है, ठीक है। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनकी मतलब हर क्रिस्टल की एंगल, उसके फेसेस, उनके फेसेस की लेंथ वो सेम होती है, वही पैटर्न रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। इनकी डेफिनेट शेप होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखें इन द सॉलिड फॉर्म, आप आयनिक कंपाउंड सबसे ऊपर देखें सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जब टाइटली पैक्ड होंगे तो आयंस तो फिक्स होंगे ना लेटिस में, वो मूव तो नहीं कर सकेंगे। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है ना। तो उस तरफ कंडक्ट करना है, इसी तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना है। तो ये कंडक्टेंस जो है ये सॉलिड स्टेट में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी टाइट पैकिंग है, वो एक दूसरे को छोड़ के भागते ही नहीं है। वाइल इन द मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन, मोल्टन का क्या मतलब है? जब आपने उन्हें मेल्ट किया, जब वो लिक्विड की फॉर्म में आए। और हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं, थोड़े से लूज पैकिंग होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो उनको तो मिलेगा ना रास्ता, वो इधर उधर मूव कर सके। लिक्विड तो मूव करता है, उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो आयंस कैन नाउ मूव एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब वो एक्वस सोल्यूशन क्या है कि जब हमने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व, एक्वा वाटर होता है ना, एक्वस सोल्यूशन इन वाटर, जब हमने उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक्वस सोल्यूशन बन गया। तो उसमें भी ज़ाहिरी बात है, जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो आयन सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल होंगे। पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव आयंस चले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉसिबल होगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉलिड में तो नहीं होती, लेकिन आयनिक कंपाउंड मतलब अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म है तो उसमें नहीं होती है, लेकिन अगर वो हमारे पास मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो कंडक्टेंस होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे आयंस मूव कर सकते हैं, वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं, एंड हेंस दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इन सॉलिड वी हैव वेरी टाइट पैकिंग ऑफ द एटम्स, ठीक है ना। और जो हमारे पास लिक्विड है उसमें पैकिंग थोड़ी सी लूज़ होती है। बॉइलिंग का क्या है? बॉइलिंग है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना। लिक्विड में पैकिंग थोड़ी लूज़ होती है, लेकिन गैस में तो पैकिंग बहुत ही इतनी दूर एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? वो टेम्परेचर जो इतना फोर्स एक्सर्ट करे कि जहाँ सॉलिड में इतनी टाइट पैकिंग है वहाँ से पार्टिकल्स को थोड़ा दूर कर दे कि उनके दरमियान में स्पेस आ जाए। अब आपको पता है यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ये तो इतनी टाइटली एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं ना कि इनको तो दूर करने के लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो चूँकि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे इसलिए मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा। इसी तरह लिक्विड से आपने जब गैस में इतनी दूर मॉलिक्यूल्स को फेंकना है, पार्टिकल्स को फेंकना है, तो क्या होगा? उनको पकड़ के खींच के ही दूर करना पड़ेगा ना एक दूसरे से। तो जब आप खींचेंगे आपको उनके दरमियान में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है ना। तो ये तो फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई melting and boiling point because they have positive and negative ions, and they have the strong electrostatic force of attraction between the opposite ions, and hence greater amount of energy is needed to break these forces. Clear? Next we have the solubility. For the solubility we have to obey the principle that is like dissolves like. लाइक एक तरह के
जो होते हैं ना कंपाउंड्स, वो अपने जैसों में ही डिज़ोल्व होंगे। हम इसमें दो कैटेगरीज रखते हैं। वन इज़ द पोलर, पोलर मीन्स पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अदर इज़ नॉन पोलर, जिसमें कोई पोल्स नहीं है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पे नहीं है, बेशक वो पार्शियल चार्जेस हैं, बेशक वो कंप्लीट चार्जेस हैं। ठीक है, तो जब पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना, वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। हमें पता है वाटर पोलर है, और आयनिक कंपाउंड में भी तो देखो ना, Na+Cl- ये भी पोलर है। तो वाटर में ईजिली आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल होंगे। और दूसरी रीज़न क्या है, वाटर की हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप फिलहाल ये समझ लो कि वाटर बहुत ज़ोर से ऑपोजिटली आयंस को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, तो वाटर में आयनिक कंपाउंड्स ईजिली सॉल्युबल होते हैं। फाइनली, होम असाइनमेंट. In the long question, you have to write what is an ionic compound, and you have to discuss the formation of ionic bond between the sodium and chlorine atoms. And in the short questions, you have to tell why ionic compounds have high melting and boiling points, and ionic compounds are solids. Justify why they are solids. Ionic compounds conduct the electricity in molten or solution form. Why molten or solution form? Why? You have to give the reason. Clear?